علیکم. انٹرنیٹ انسٹیبل ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ تعالی ہم حروف مقطعات کریں گے. پہلا سبق ہمارا ختم ہو گیا چیپٹر. اب حروف مقطعات کا ہے. تو حروف مقطعات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بے شک لوگ ان کو گھروں میں لٹکاتے ہیں اور برکت کا سبب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کوئی قول موجود نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ برکت کے لیے لٹکائے جاتے ہیں، جہاں ان سے برکت حاصل ہوتی ہے لٹکا لینے سے گھروں میں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح رہنمائی دے قرآن کی طرف. بالکل ہم وہ لیں جو اللہ نے دیا اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، اس میں ڈالی گئی ہیں. تو بدعات سے ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رحمان یا رحیم یا اللہ مدد. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حروف مقطعات جو ہیں ہر صورت کے پہلے نہیں آتے بلکہ چند صورتوں کے پہلے آتے ہیں، تو جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں. جیسے الف لام میم دوسری صورت ہی ہے جس میں آ گیا ہے سورۃ بقرہ میں. تو سورۃ البقرہ میں بھی شروع میں الف لام میم یہ آیا ہوا ہے. اس طرح ہم نہیں پڑھتے جس طرح ہم اردو میں سے کہہ دیتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کا آپ دیکھیں گے کہ جہاں شد ہے شد کا حق ادا کرنا ہے، زبر زیر پیش کہیں نہیں ہے. تو یہ اصل میں عرب جو تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، تو اس وقت کیا تھا کہ عربوں کی جو جب وہ کلام لکھتے تھے کوئی، تو ان کے کلام سے پہلے انہوں نے سٹائل کے طور پر بھی یہ لکھے ہوتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف قرآن بھیجا تو بالکل ایسے ہی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ان کو یہ بھی دیے پھر. تو ان کے کہا جاتا ہے کہ عربوں کے جو بھی ان کی کتابیں ہوتی تھی، ان کے کلام جیسے شاعروں کے بھی جو بھی ہوتے تھے مصنفوں کے، تو ان کے کلام سے پہلے لکھے ہوتے تھے یہ کئیوں نے. تو ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مطلب نہیں بتایا اور نہ کوئی تفسیر بتائی ہے. واللہ عالم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کی تفسیر اور بہتر جانتا ہے ان کے مطلب. تو یہ جیسے آئے ہیں ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے بتائے علیحدہ علیحدہ. قطع کا مطلب ہوتا ہے حروف مقطعات. قطع قاف تا اور عین. قطع کرنا کیا ہوتا ہے؟ علیحدہ علیحدہ کرنا یا ٹکڑے ٹکڑے کرنا. علیحدہ علیحدہ کر کے ہی پڑھے جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑتے نہیں ہیں. جہاں آپ نے شد دیکھیے دیکھ رہے ہیں آپ، شد اس کا مطلب ہے جہاں پہ دو میم ہے. ٹھیک ہے، الف لام میم، میم تو نہیں پڑھتے ہیں نا آپ، پھر تو اس کے اوپر شد ڈال دی گئی ہے. تو پھر پہلی میم جو ہے وہ پھر ساکن ہو کے آگے بڑھ گئی. تو ہم کیا کریں گے، یہ مد کون سی ڈلی ہوئی ہے؟ کون بڑی مد ان کے اوپر ہے نا، اور کئیوں کے اوپر کھڑی زبر ہے. تو کھڑی زبر بڑی مد ہے جی، بڑی مت ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے ہم پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ 6 کاؤنٹ. یہ جو میم ہے یہ تو 6 کاؤنٹ پڑھی جائے گی نا جی، لیکن لام کتنے کاؤنٹ پڑھا جائے گا؟ یہ بھی 5 سے 6 پڑھا جائے گا نا، 5 پڑھا جائے گا، 4 سے 5، 4 سے 5، 4 سے 5 کیسے پڑھا جائے گا جی؟ مجھے یہ بتائیں. لیکن حمزہ کہاں ہے؟ شروع میں. اس کی شرط نہیں ہے جہاں پہ موجود. جی، الف ہے، وہ حمزہ ہے نا، الف ہے جی، یہ الف ہے جی، حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی.
हमज़ा फिर निखर के आता। क्यों? क्योंकि ये हरूफ़ मुक़त्तआत है, तो ये हमज़ा नहीं है, ये अलिफ़ है, अलीफ है, अच्छा। ठीक है? इनसे पहले जो भी जैसे आएगा ये अलिफ ही ये होगा। अलीफ ही होगा, या अच्छा। मैंने अलीफ ही बताया होगा। हुआ है ना आपको हाँ जी, हाँ अलिफ जी। की इकसाम में कि अलिफ अगर खाली होगा तो अलिफ ही अपनी असली शक्ल में होगा, लेकिन अगर अलिफ के ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश कुछ आ जाए, हरकत तो कोई आ फिर जाए, हमज़ा होगा। जज़्म फिर आ जाए हमज़ा तो फिर वो हमज़ा हमज़ा बनता होगा। है। हमज़ा होगा, हाँ जी। ठीक है? अब ये हमज़ा की शक्ल में नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अलिफ है और इसको अलिफ ही पढ़ा जाएगा। अलिफ में कितने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के कह रही हूँ उर्दू के? अलिफ लिखने में कितने होते हैं? अलीफ 3। ये नीचे लिखे हुए हैं लाल 3, देखें? तीन, लाल हाँ जी। 3, हाँ जी। 3 हाँ है जी, ना? 3, तो जी 3। अलिफ, लाम, ऐसे करके इसको ये फिर मीम को भी 6 हरकत देनी है, जी, ठीक है? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, जो है हमने पढ़ा हुआ है ना मद्दे जहाँ पे मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद के ऊपर गुन्ना होता है और जी, अक्मल गुन्ना होता है, पढ़ा हुआ है ना? जी, 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 मैंने बताया हुआ है पहले जब हम करते थे पहले तजवीज़ की थी तब मैंने बताया था कि अकमल गुन्ना होता है इसके ऊपर मुकम्मल से भी ऊपर अकबर के वजन पर अकमल यानी बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट गुन्ना होता है। तो ये फिर मीम मुशद्दद है तो इसके ऊपर गुन्ना होगा, ठीक है? अब कौन बहन पढ़ेगी? हम्म मैं पढ़ूं? मजीदा बहन आप पढ़े इसको, ये ऊपरली लाइन को। अच्छा, अच्छा। कौन बहन कह रही? सीमा बहन पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिसने पढ़ना है जल्दी से हाथ खड़े कर लें सब। अलिफ लाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर फिर रहीम। पढ़ें बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर नहीं रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ें, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, ठीक? बिस्मिल्लाह अच्छा, बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाह इर्रहमा नहीं है, हिर्रहमा। हाँ है नीचे जेर है। रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर नहीं इर्रा नहीं है मेरी बहन, हिर्रा है। रहमानिर रहीम। हाँ होगी वो, ठीक है? बिस्मिल्लाह के अल्लाह के नाम के आखिरी जो ए, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बिस जी पढ़े। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ इसको टाइम देना है, अपने हा को भी हल्क के दरमियानी हिस्से से अदा करना है। अपनी 2 उंगलियां रख सकते हैं जहाँ पे वो आडम जाफल होता है, जहाँ पे बच्चों के नहीं लड़के बड़े हो रहे हों तो हड्डी उभरती है थोड़ी सी गले में, वहां पे आप अगर अपना हाथ रखेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ हा निकल आएगी। हिर्राह, पहले तो ही है वो बहुत आसान है, जो अल्लाह के नाम के साथ है, हाजिर ही, बिस्मिल्लाह ही है, वो उसको आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे वाली जो हिर्राह, राह, वो हा जो है वो हलक के दरमियान से रगड़ा खा के निकलती है। और इसी तरह ही हिर्रहमा निर्रहीम, निर्रहीम, हा वो भी रगड़ा खा के निकलेगी, हलवे वाली हा जो है, ठीक है? पढ़े आप। अलिफ अलिफ लाम मीम। इसको होल्ड करके पढ़े, होल्ड करके जहाँ पे यानी कि आपने होंठों को दबाए रखना है। लाम, लाम के भी आगे मीम आती है ना लाम लिखने में, ये देखिए मीम ला आई हुई है ना। जी, लाम, लाम जहाँ पे भी मीम है तो यही लाम की मीम जो है ये देखें, मीम
लाम की मीम का मीम के साथ क्या हो रहा है? इदगाम हो रहा इदगाम है। हो रहा है। हम ठीक है? मीम का मीम में इदगाम हो रहा है, यानी मदगम हो रही है। तो हमने वो असूल जो पढ़े हैं, 4 असूल तनवीन और नून सुकून के, उनमें नहीं थी, ये किसमें थी? ये अभी हमने पढ़ी नहीं है मेरे ख्याल, हाँ जी, नहीं अभी अभी नहीं पढ़ी पढ़ा, नहीं। हाँ जी। अभी नहीं पढ़ा। इसका इदगाम हो रहा है, मेरा ख्याल है इसको हमें हम रहने देना चाहिए था, बाद में पढ़ते, क्योंकि इनका इनमें इदगाम हो रहा है। मीम का मीम में इदगाम, मदगम करना यानी मीम को मीम में मिला देना मिला है। वही है मिला ना, हाँ एक जी। कंपनी मर्ज कर देना है ना, एक कंपनी दूसरी जी से मर्ज होती है, तो जी मर्ज हो जाता है, क्योंकि लाम में भी मीम है आखिर में, और मीम में भी मीम है आखिर पे शुरू में, ठीक है? जी तो ये उसको दोनों अब लाम लाम मीम अलग-अलग तो नहीं करेंगे आप ना? जी इनको इकट्ठा रख के पढ़ना है। अलिफ लाम मीम। ये लाम पढ़े। अलिफ होल्ड करके मीम कहना है, होल्ड करके, क्योंकि इस ये जो में है लाम लाम, तो इस मीम जो है ना, लाम में मीम, इसके जी ऊपर जज़्म आएगी। जैसे आप अगर लिखना चाहें तो जज़्म आती है जब आप लिखेंगे अरबी का कोई लफ्ज़, तो जहाँ पे स्टॉप करते हैं आखिरी हर्फ जो होता है उसके ऊपर जज़्म आ जाती है, लाम लाम। तो मीम जो है लाम की, उसके ऊपर जज़्म आके लाम अलिफ लाम मीम ठीक है। अलिफ लाम मीम। अब सही है? मीम, अलिफ इसको भी लंबा खींचे ना। लिफ लाम मीम मीम, मीम मीम आखिरी को छोड़ नहीं देना, हरकत लंबा करते हैं इसको, क्योंकि मीम। ये शे हो गई ना, एक लाम, लाम की 3 हो गई, और जहाँ पे मीम अकमल गुन्ना होके मीम मीम मी मी मीम, अगर मीम कहेंगे तो क्या होगा? मीम मीम, या खा जाएंगे, इसका इसका हक नहीं अदा होगा, ठीक है? मुंह में मीम में ऑटोमेटिकली गुन्ना पाया जाता है, यानी नाक में आवाज जाती है और वहां से बाहर आती है। क्यों? क्योंकि मुंह हमारा बंद है। होंठों में क्या ना लफ्ज ये हर हर्फ किधर का है? मखरज इसका क्या है मीम का? कोई बहन बताएगी मीम का मखरज क्या है? और जी होंठों होंठों से अदा होती। कौन से होंठों से? कितने दो कौन से हिस्से दो से होंठों के? होंठों के खुश्क हिस्से से। खुश्क हिस्से से, खुश्क मीम हिस्से से अदा होता होंठों है के ना। दोनों खुश्क हिस्से जहाँ पे औरतें लिपस्टिक लगा के रखती हैं वो से। हिस्सा, ठीक है? तो वहां पे होल्ड करके रखना है, तो जब होल्ड करते हैं तो वो उसका जो प्रेशर है, जो उसकी आवाज है, वो वो नाक की तरफ दबाव उसका जाता है नाक की तरफ, तो नाक की नाक तरफ के जाता रास्ते है जी। में वहां पे वो फिर बाहर निकलता है। तो इसलिए वहां पे लाम मीम नहीं करना, लाम मीम, लाम मीम। आगे लाम मीम। अलिफ लाम मीम सॉद। अलिफ लाम मीम साद, ये तो लंबे अलिफ लंबे हैं। लाम मीम सॉद साद, सॉद। नहीं साद 3 दफा नहीं है, ये मद बड़ी मद है, ठीक है? बड़ी मद के लिए लंबे होता है। बड़ी मद जो है ये 4 से 5 काउंट लंबी होती है, ठीक है? 5 काउंट कर लें तो बेहतर होती है। यानी भी अलिफ हम्म, अलिफ लाम मीम सॉद साद, सॉद। आगे पढ़े। लिफ
लाम मीम। नहीं, आगे वाला। अच्छा, वो रा है, रा है। हाँ अलिफ, जी, वो पढ़े। अलिफ लाम रा, हम्म, अलिफ लाम रा। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। मजीदा बहन, अब आप अगली लाइन पढ़े। अच्छा बच्ची, अलिफ लाम मीम रा। मीम के ऊपर भी टाइम दें बाद में भी। अच्छा, अलिफ लाम मीम रा। अलिफ लाम मीम रा। मीम भी लंबा होगा। अच्छा, अलिफ लाम मीम। लाम इतना लंबा नहीं का करना, लेकिन अच्छा लाम के आगे मीम को जरूर मिलाना है, क्योंकि लाम में अपनी मीम जो है जी, वो अलिफ बिल्कुल वही। अलिफ लाम मीम रा। अलिफ लाम मीम रा। अलिफ सॉरी बच्ची, अलिफ लाम मीम रा। आप लाम के साथ मीम को मर्ज करेंगे हाँ जी, और फिर आगे मीम मीम को पर 6 मीम काउंट पर। लंबा करेंगे। हमने अच्छा पढ़ा था मद्दे जी, हाँ मुसक्कल जी कलमी जायज है ना, मद्दे मुसक्कल कलमी लाजिम है। ठीक है। हाँ आगे जी, मेरे मद गले का मसला हो रहा है। ना भारी हो जाती है ना मद जी। हाँ जी, भारी मद है, इसको हम हाँ जी, कहते हैं दूसरे अल्फाज में भारी मद है। हाँ जी, मुसक्कल का मतलब भारी होता है हाँ ना। जी, शाद भी आ हम्म जाती है ना। हाँ जी, हम्म, तो ये फिर लंबा होता है। जी। ठीक है। आ, आगे पढ़ो। इसका पढ़े, हाँ जी। काफ हा या आइन साद हम्म, आगे। ताहा। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। मेरा गला रिफत खराब हो बहन, रहा आगे आप पढ़े। आगे वाला आप पढ़े, आगे वाली लाइन। किसके साथ ही मुझे कहा। हाँ जी। कोई और बहन पढ़ना चाहती है तो वो हाथ खड़ा कर ले, जा मुझे बता दे, फिर मैं उनको ठीक है। मीम। फिर कोशिश करें तो को मोटा रखते हुए, और फिर तो मोटा करते तो। सीन को मीम के साथ अच्छी तरह मैर्ज करना, मिलाना है उसको अच्छी तरह। ठीक है। ठीक है। तो मीम। तौसीन सीन, जहां पे मीम जब आएगा ना, सीन का अपना नून है ना। जी सीन का नून है ना, जी सीन मीम अलग अलग जी हो जाएगा है ना। जी क्योंकि सीम सीम ये नहीं बनता, नहीं है सेंस, क्योंकि सीन भी अलहदा नून रखती है आखिर जी में। लाम का मर्ज होना बहुत आसान था आगे, ऐसा ही है ना। जी आगे में लाम का लाम में मीम है ना, तो मीम का मीम के आगे मिलना बहुत आसान था, लेकिन अब इस नून का मीम के आगे मिलना है। ठीक है। तो इसको दोबारा जरा बात ही पढ़ो। ठीक हाँ पढ़ना है। जी। जी पढ़े। मीम। ठीक है। आगे। हाँ जी। तासीन। ठीक है बात। जी यासीन। ठीक है। तौसीन मीम तौसीन, फिर भी होल्ड करना है आपने। ठीक है। जी नून नून जाहिर होना नून चाहिए ना। कहने के बाद होल्ड थोड़ा सा, क्योंकि नून का मखरज और है ना। जी
ये बहुत दूर का मखरज है। किधर है नून का मखरज? नून का मखरज किधर है? नून कहें, अन कहें, किधर लगता है अन जुबान? अन ऊपर ऊपर हम्म। वाले दांतों के मसूड़ों से लगता है। हाँ, ऊपर वाले हाँ, कितने दांतों के मसूड़े से लगता है रा के लिए? नून छः छः 4 दांतों के। नून 4 दांतों के। सॉरी, रा 4 दांतों के है, नून रा 6 4। दांतों के, हाँ ठीक। जी, नून 6 में हाँ है जी, बाजी। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर हाँ जी। वाले दांतों के मसूड़ों में। हाँ 6 दांतों से लगता है, क्योंकि ऊपर वाला रा ऊपर नजर आ रहा है जी मुझे, तो मैं उधर ही गई हुई जी हूँ। 6 दांतों के मसूड़ों से। अब नून के बाद मीम के ऊपर जंप मारना होता है, जी ऐसे ही है ना? जी सीन, मीम, सीन उधर लगा के, नून के मखरज पे लगा के, तो फिर मीम के साथ होल्ड करके, वहां पे मखरज पे फिर होल्ड करके मीम के मखरज की तरफ जाया जाता है। तो सीन, मीम, ठीक है। मीम फिर लंबा होगा। मीम जी। जो है कितना लंबा होगा फिर? 6 काउंट। 6 6 काउंट होगा। 6 काउंट लंबा होगा। बड़ी तो मात्रा में। सीन, मीम, तो सीन, तौसीन। इसको आप लोग जो हैं कारी किसी का सुने, वो क्या करते होते हैं, ठीक है? सूरतों का शुरू जो है कारी का सुने, जिन जिन सूरतों के शुरू में जो आते हैं। जी यासीन, हम कहते हैं यासीन, ऐसे ही है ना? या यासीन, तासीन, यासीन, हाँ जी। है जी ना? तो अलिफ लाम रा जल्दी से पढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हा जो है ये जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है। दो दो ही इसके 2 काउंट ही हरकत होगा ना। होती हैं, है ना? या दो भी दो 2 ही काउंट ही होगा होता है, बाकी। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि असल में ये अलिफ सगीरा है ना, जी जी, ऊपर खड़ी जबर जिसको हम कहते हैं। हाँ जी, 2 अरब काउंट ही से। होगा। आगे हम देखते हैं, इसकी और भी मिसालें हैं। कौन बहन और है जो पढ़ना चाहती है इनको? जल्दी से बोल पड़े। जो बहन पढ़ना चाहती है इनको शुरू कर दे जल्दी से। कोई बहन नहीं और पढ़ना चाहती? ठीक है। मसरत बहन, आप पढ़ना चाहेंगे? अम्मा, ये क्या है? इमादु, अमादुद्दीन अंसारी, शहनाज बहन है ना? जी, उन्होंने ही ठीक अपने है। उनका सर का नाम नाम लगाया जी हुआ है। बाजी, अमादुद, जी बाजी हाँ मैं हूँ। जी, ठीक है। अमादुद्दीन अंसारी, ठीक है। इंशाल्लाह इमामुद्दीन, आप इमामुद्दीन। इमामुद्दीन, जी इमामुद्दीन जी, अंसारी। उनके नाम से अभी ये हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो मैं इसीलिए मुझे याद आ गया था कि आप थे। हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह आपने पढ़ना है? जैसा आप बोलिए। नहीं, पढ़ ले। जी बाजी, ये लो जी पढ़। आपके लिए, मैं बड़ा जी कर बाजी। दिया आपके लिए, क्योंकि पढ़ने से ही हमें झिझक दूर होगी ना। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी स्वाद से वालेकुम पढ़ूं? सलाम स्वाद, हाँ जी। ये भी लंबा होगा, जहां बड़ी मद होगी लंबे होंगे। जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप अपने स्वाद। होंठ गोल ना किया करें, मुंह को गोल ना किया करें, मोटे अल्फाज कहने के लिए, मोटे हरूफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही है? अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है कि आपने रा के लिए होंठ गोल नहीं किए। जी 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 क्योंकि जब मुंह गोल हो जाता है ना, तो उसकी मोटाई भी नकली होती जी है ना जी। फिर। हाँ, वो पुर पुर तो पड़ा नकली जाता है मोटाई ना। का पता चल जाता है। हाँ। हाँ, वो पुर पड़ा जाता है, इसलिए वो थोड़ा गोल हो जाता है बताने में। पीछे से ज़ुबान की जड़ उठ जाएगी ना, तो आपको हम्म। मुँह आगे से गोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी 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 ठीक है, बाजी, इसको स्वाद से पढ़ें। पढ़ूं? स्वाद से पढ़ूं साद, बाजी? हाँ जी, साद से पढ़ें। जी। स्वाद। उहुँ। साद,
صاد صحیح ہے آگے آگے ہا میم عین سین قاف ویل ڈن، ماشاء اللہ قاف ماشاء اللہ. نون ٹھیک ہے، اتنا بہت ہے. نہیں، آگے کوئی اور پڑھ جاتا ہے. آگے کون پڑھے گا؟ کوئی اور بہن پڑھنا چاہتی ہے؟ جس میرا نے ہو نہیں گیا پڑھا باجی، تو جلدی سے میرا ہو پڑھ گیا. لیں. ہاں جی، آپ کا ہو گیا، آپ کا ہو گیا ماشاء اللہ. جی باجی جزاک اللہ. کسی نے پڑھنا ہے جلدی سے پڑھ لے، ورنہ میں پھر کسی اور کو کہہ دوں. آپ نہیں، ٹھیک ہے، آپ ہی شہناز بہن آپ ہی پڑھ لیں ان کو بھی. ان کو بھی پڑھ لیں آپ. کون سا کاف والا پڑھوں؟ کاف نون؟ آخری 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 جو ہے، آخری لائن. آخری کاف ہے اور نون ہے، دو ہی ہے. 3 ہے. اچھا، وہ عین والا آپ سین دیکھیں والا کاف والا. اجے، آپ کے میرا خیال آپ نے شاید زیادہ بڑا کیا ہوا ہے. ہاں دکھ نہیں رہا ہے. سائڈ پہ چلا گیا نا. ہاں جی. سائڈ پہ ہاں چلا گیا، ایک سائڈ پہ آپ کریں اس کو تو اب آ جائے گا. جی. اور ہاتھ سے شروع ہوتا ہے. ہا ہاں میم صرف دو، ہاں صرف دو، ہا 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 میم. ہا ہاں جی، میم عین سین وہ کدھر قاف. ہے؟ اوپر اوپر والا اوپر اچھا پڑھ اچھا، لو. آپ نیچے اوپر والے ہاں پڑھ رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے، نہیں نہیں، سیکنڈ لائن پڑھے نا، آخری لائن جو ہے. اچھا، ہا میم قاف نون. ہوں. ابھی اس کے نون کے آپ یہ دیکھا کریں کہ جو حروف ہے نا، ایم، جن کے آخر میں ایم، آتے ہیں قطب جدن کے، ہے نا، قلقلہ کے لیٹرز بھی، جی. یا جن کے مخرج میں ٹھہرا جاتا ہے، ان کا بالکل خیال رکھتے ہوئے ان کو پڑھا کاف جاتا کا ہے. ہے، کاف ادھر میں ہوئے گا کلکلا باجی، ہے نا؟ قاف نہیں، قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ فا ہے اس کے آگے. ٹھیک ہے، اچھا قلقلہ نہیں ہوگا، نون کے بھی قلقلہ نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوتا. کاف ف اچھا کر دیا تو وہ مخرج سے باہر آ جائیں گے، وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اچھا اچھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جہاں پہ تھوڑا سا وضاحت لیتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، اگر لکھنا ہو کسی نے تو اس کے لیے، تو الف لام میم جو ہے، الف کے بعد لام پر 5 یا 6 الف کے برابر مد، پھر میم پر گننا، پھر میم پر اسی طرح مد ہوگی جو میں نے ابھی بتا چکی ہوں آپ کو. جی. تو اس میں تو سین میم جو ہے، اس میں تا پر 1 الف کے برابر مد، سین پر 5 یا 6 الف کے برابر مد کے بعد میم پر گننا بھی ہوتا ہے. میم اور نون مشدد پر گننا ہوتا ہے نا، تو جہاں پہ جی. میم ہی آئی ہوئی ہے، نون مشدد نہیں آیا ہوا. ٹھیک ہے، پھر میم پر اسی طرح مد ہوگی. تو اسی طرح جو آگے والا ہے، کیف ہا یا عین صاد میں عین پر اور ہا میم عین سین قاف، میں ویسے اردو والا ہی پڑھ رہی ہوں علیحدہ علیحدہ. میں عین اور سین پر مد کے بعد اخفا ما گننا ہوگا، یعنی اخفا گننے کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، کن پر؟ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں یعنی کہ عین اور سین پر عین سین وہ ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا ہولڈ کر کے رکھنا. تو اخفا گننے کے ساتھ ہوگا. تو کیوں؟ کیونکہ نون آ رہا ہے نا آخر میں. جی سین اور جی. عین کے آخر کا لفظ کا حرف کون سا ہے؟ نون ہے. تو نون میں قدرتی گننا ہوتا ہے نا، نون اور میم میں قدرتی گننا بھی ہوتا ہے نا ان میں. تو جی، وجہ یہ ہے. تو ماد کے بعد اخفا ما گننا کریں گے ان کے بعد اوپر. تو تا ہا میں تا اور ہا کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. اسی طرح جس حرف پر کھڑا زبر، کھڑی زیر جا الٹا پیش ہو، اس کو 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا، جا لمبا کریں گے. اور جس
हर्फ पर मद हो इस पर मद करेंगे। तो यानी जो मद के बगैर हर्फ होगा उसके क्या है होगी, है ना? वो ऐसे ही पढ़ा जाएगा ना। जी। मद जिसके ऊपर नहीं होगी वो जितना उसका काउंट अपना होता है उतना ही। जैसे 3 हरूफ वाला जो है उर्दू में लिखने में जिसके 3 जैसे आइन के 3 है, ये जैसे आइन या और नून है और सीन या और नून है, 3-3 हरूफ है ना इसको। जी ऐसे इसी तरह ही अलिफ के भी 3 हरूफ हैं। जी तो ये ता ता इसके 2 हरूफ हैं तो है, हाँ उर्दू जी लिखने में, है ना? तो जी यही है मीम के भी 3 हरूफ हैं। तो जी इस तरह ही फिर हम उनको जितने-जितने उनके हरूफ होते हैं उसके लिहाज से उनको खींचा जाता है। तो बाज़ लोग खड़े ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टे पेश को इसकी ज़ात से बढ़ाकर पढ़ते हैं। जी बिल्कुल गलत है, यानी कि इतना खींच देते हैं जो खींचना नहीं चाहिए। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टे पेश की मिकदार सिर्फ़ कितना है? 1 अलीफ़ है। तो 1 अलीफ़ में कितने हरकत होती हैं? 2। तो 2 हरकत होते अलिफ़ हैं 1 अलिफ़ में कितनी हरकत होती हैं? 2 2। जी तो तो फिर 2 हरकत के बराबर इनको खींचा जाता है। इनको 1 अलिफ़ के बराबर ही खींचकर पढ़ना चाहिए, यानी 2 हरकत के बराबर। 1 अलिफ़ में 2 हरकत होती हैं, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला जी हम जहाँ पर रखते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ ले। किस बहन ने पहली बार इसको इस डिटेल में पढ़ा है कि सभी को पता था पहले ऐसा? नहीं, पहली मर्तबा पढ़ा है अपने तो ऐसे। पढ़ा पहली इसको हमने इसको कुरान में जब भी हमने पढ़ना है जल्दी नहीं करनी, जो हरूफ मुक़त्तआत हैं इनमें जल्दी नहीं करनी हमने। जब भी इनको पढ़ा जाएगा इनको टाइम उनका दे के पढ़ा जाएगा। इनके ऊपर हम देखेंगे कि कितने-कितने हर्फ जैसे हा और अलिफ है लिखने में आता हा, मीम मीम में या के ऊपर मद बड़ी हो ये ऐसे लिखी जाती हैं, यानी कि मीम मीम इस तरह पढ़ते हैं ना मीम। वैसे तो हम कहते हैं मीम मीम पे, तो फिर हम लंबा इसको खींचेंगे मीम मीम, ठीक है? इंशाल्लाह ताला तो ये हमारा आज ये भी खत्म हो गया। 2 हमने अलग-अलग असूल किए हैं। 3 असूलों की मिसालें आपने कुरान में ये जो है मिसालें ये तो आपको पता ही है कि कहाँ-कहाँ है। जो भी पहली-पहली आयत ही होती है ये आम तौर पर कुरान की जो भी सूरतें हैं जो शुरू होती हैं इन हरूफ मुक़त्तआत के साथ वो क्या है? जैसे नहीं, ये आपने मुझे बताना है, मैंने नहीं बताना आप लोगों को, आपने मुझे बताना है। हाँ जी, आवाज़ बंद हामीम हो है? गई। ये हामीम कितनी सूरतें हामीम से शुरू होती हैं? किसी को पता है? हुँ? हामीम से कितनी शुरू शुरू होती हैं सूरतें? हाँ ये भी तो होती है शुरू लेकिन तो ये होती है सिस्टर, ये नहीं पता। इनका नाम है सूरतों का। जी? जी पता नहीं, याद नहीं सिस्टर कितनी होती है। हवामीम हवामीम की सूरतें उसको कहते हैं हवामीम। 6 भगवान सूरतें हैं जो इकट्ठी आती हैं ये यके बाद दीगरे, ठीक है? भगवान। अच्छा हवामीम कहते हैं उनको। तो हवामीम की सूरतें 6 हैं, ठीक है? ये सूरतें जो हैं यके बाद दीगरे आती हैं। यानी हवामीम शुरू होती है तो 6 सूरतें लगातार हामीम से ही शुरू हो रही होती हैं, ठीक है? तो इन सूरतों को इकट्ठा क्या कहा जाता है? हवामीम की सूरतें। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारी थोड़ी-सी वज़ाहत बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाती कि इतना ही बहुत है हमें समझ आ जाए हमें कुरान बहुत डिटेल में नहीं बस तजवीद को हम सीख रहे हैं सिंपल तरीके से थोड़ा-सा हमें पता हो, इतना भी सिंपल ना हो कि हमें पता ही ना हो हम क्या पढ़ रहे हैं। वो सिंपल नहीं है, वो तो फिर यही है कि जैसे पढ़ते हैं फिर।
لیکن یہ ہے کہ اس کی سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیسے پڑھنا ہے، کیسے یہ جو آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں جا، میں قاعدہ کوشش کروں گی بھیجنے کا، نہیں بس جی آپ جو سبق شاید بھیج میں نے دیں ہاں جی جو آج ہم نے کیا نا جو آپ بھیج دیں پھر ہم لکھ لیں گے ہاں جی ان کو دیکھنا ہے، لکھ کے دیکھ سکتے ہیں آپ، ہاں جی ہاں یہ جو اس کو سن لیں، ہاں جی اگر ہاں پتہ جی نہیں مجھ سے پر آپ جی آپ ریکارڈنگ بھیجیں گے تو پھر ہم لکھ ریکارڈ لیں گے نا ہاں جی ہاں اس کو سن لیں، آپ سن کے ان کو لکھ لیں، لکھ لیں ہاں جی ان کو جو لال جو رائٹنگ ہے اس میں دیکھنا ہے کہ کتنے کتنے استعمال ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر یا پر مادہ آئی ہوئی ہے، جہاں جی پر الف پر مادہ آئی ہوئی ہے تو یہ ہمیں پتا ہے کہ حروف مدہ جن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں نا، جی تو وہ ان میں پایا جاتا ہے، پھر کسی میں گننا پایا جا رہا ہے، کسی میں اظہار ہو رہا ہے، کسی کے مخرج قریب قریب ہیں، کسی کے مخرج جو ہیں دور دور ہیں، جیسے اور نون اور میم کا مخرج ہم نے دیکھا آج کہ ہاں جی کتنا دور ہے، نون کا جی مخرج اس کا کہاں جا ریکارڈ کے نہیں ہو ہمارے رہا باقی یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا جی ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے ریکارڈنگ ہو رہی سبحانک ہے اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن کو جیسے آیا ہے ایسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں جہالت سے باہر نکال دے اور صحیح علم عطا فرما دے، قرآن کا صحیح علم جو ہمیں اے اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈ کر دے سیدھے رستے کی طرف، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذل جلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما یا رب العرش العظیم، یا رب یا رب یا رب ہماری زندگیاں قرآن کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں قرآن جو ہے ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو ہر اینگل سے ہر طرح سے ہم قرآن کو سیکھیں، اور اے اللہ ہمیں آگے پہلے ہمیں سمجھا دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر ہمیں آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما، جو ذمہ داری تو امت مسلمہ کے اوپر تو نے ڈالی ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اس طرح پڑھنا آ جائے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے آگے پڑھا اور صحابہ اکرام نے آگے پہنچایا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے طریقے سے قرآن پڑھنے والا بنا دے کہ اس کا حق ادا کر دیں ہم، اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی تجوید سیکھی جائے، یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ اس کو ٹھیک پڑھا جائے، اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔